Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah, Head of Commodity Research from Nirmal Bang Securities Private Limited. Uh, I'm going to start with where we have left on Friday. I clearly told everyone to go long on gold, and today gold prices have made a new high, almost 52-week high, where we've seen gold on MCX testing high of 60,400 and silver testing high of almost 70,000 rupees, and from there it has corrected a bit, and lot of events this week lined up. So just before I started this webinar 10 minutes back, there was a news that China is basically trying to you know become a peace negotiator, and Russia China is indicating that Russia is willing to talk on the Ukraine front. And the moment this news came, gold immediately went down. So the geopolitical premium in gold is basically eroded after this news. And we have FOMC meeting this week, Tuesday, Wednesday, and Wednesday night at 11:30 we are going to get the Fed decision, and that is going to create lots and lots and lots and lots of volatility in the market, and how you should approach these events I'll basically guide you in this webinar. So regarding gold and silver, let us first focus on gold and silver. So my view on gold and silver, the moment we are seeing the banking crisis in Europe is basically moderating after UBS took over Credit Suisse, even at very low price 0.75 75% discounted rate. So almost at 60 cent they bought a stake at they bought Credit Suisse, and Swiss government is ready to provide liquidity to UBS bank also, and Credit Suisse also. So a bit of this news is factored in. So I think from tomorrow we can see some profit taking. Tonight also we can see some profit taking in gold. I'm still not in a favor to go short in gold, but if you are having long, you can book your profits, and then when it goes down, you can again buy it at maybe perhaps in 1970, 1980, whatever levels, technically. 1970 seems good. At FOMC meeting, you may get, at 1950. That seems to be the bottom for gold. The long term trend of gold is very bullish, because I think it's a very complicated scenario for central banks. On one side they have to increase the rates, and other side they have to manage the crisis in the financial sector. So I think somewhere, they are going to say, okay, now we are not going to increase the rates, it's okay. So in that scenario, inflation will be high, growth will be low, supportive for gold. And if they don't do that, if they keep, uh, they maintain this, and they say that, look, we are not going to even hike the rate, and we are going to cut the rate. In that scenario also gold is going to go up. So eventually gold trend is bullish. बट आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है. आई कंटिन्यू विद हिंदी. सो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड में आ सकता है. ये रशिया के न्यूज़ आने के बाद 59,200 59,100 के लेवल, सिल्वर अराउंड 68,000. सो मॉर्निंग में जो सीन था वो रशिया के न्यूज़ आने के बाद पूरा सीन, रशिया बेसिकली यूक्रेन के मामले में पीस टॉक करने के लिए तैयार है, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है चाइना की. और चाइना इज बेसिकली ट्राइंग टू ब्रोकर द डील. सो थोड़ा नेगेटिव है गोल्ड के लिए. अभी 59,800 में आप बेचिए, 60,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 59,250 300 में प्रॉफिट बुक कीजिए. सिल्वर भी अराउंड 69,000 के आसपास बेचिए, 69,500 का स्टॉप रख के 68,200 के आसपास अपनी पोजीशन को कवर कीजिए. सो दिस इज बेसिकली वेरी 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 सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फॉर गोल्ड आज के लिए. सो ये हुआ गोल्ड एंड सिल्वर. अभी जो फेड की एफओएमसी की जो मीटिंग है उसका 2 दिन बाकी है. सो एफओएमसी का हम आज से नहीं करेंगे. सो नाउ कमिंग टू ऑयल, ऑयल. सो व्हाट डज इट चेंज फॉर ऑयल? ऑयल भी मेरे हिसाब से $65 आ गया है. यहाँ से डाउनसाइड रिस्क मुझे थोड़ा कम लग रहा है अभी इमीडिएटली. 5300 में मैं बाइंग करने के लिए, 5320 पे भी बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा. 5250 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखना, और ऊपर में 5450 5500 के लेवल आपको कच्चे तेल में देखने मिल सकते हैं. मेटल्स ओवरऑल व्यू बहुत तेजी का नहीं है, पर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ,
अगर ये रशिया का ये जो पीस टॉक की बात है तो सेंटिमेंटली थोड़ा बहुत कॉपर ऊपर आ सकता है। अगेन 752 पे अगर आपने बाय किया है, आज भी 745 का लो मार के 754 है, सो 740 45 इज द लेवल। सो आज भी थोड़ा बहुत आपको एक बाउंस देखने मिल सकता है 58 या 62 तक, उससे ज़्यादा तेजी नहीं है। जिंक भी अराउंड 258 259 ऑन एमसीएक्स आ सकता है, जो अभी 56 है, उससे ज़्यादा तेजी नज़र नहीं आ रही है। सो बेसिकली मेटल में और आज हमको शाम के सेशन में सभी कमोडिटी में थोड़ा बहुत मेटल और ऑयल में अपसाइड देखने मिलेगा, और गोल्ड सिल्वर ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने मिलेगा। सो जो लोग हमारा वेबिनार सुनते हैं उनको हम लगातार कह रहे हैं गोल्ड तेजी और क्रूड मंदी। सो इन लाइन विद दैट इट इज गोइंग ऑन। सो so I'll go to the question answer session. इरफान खान जी, सर गोल्ड और सिल्वर बाय करें 2 दिन के लिए? नो, रुकिए, करेक्शन आएगा आज, मैंने आपको समझाया। जो लेवल पे मैंने टारगेट दिए वहां आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। रितेश अग्रवाल जी, जिंक बाई 258 260 क्या करना चाहिए? आ सकता है 258 260, पर वो लेवल आता है तो एक बार एग्जिट ले लेना। मेटल में लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। क्रूड ऑयल 5650 में बाई है, क्या करें? होल्ड कीजिए मनोज जी। लग रहा है शाम को थोड़ा बहुत रिकवरी क्रूड में आ सकता है, लंबी तेजी नहीं है उसमें भी, पर रिकवरी देखने, पोजिशनल बाई नहीं है, रिकवरी। परसों जो मैंने रिकमेंड किया था उसके बाद भी बैंकिंग क्राइसिस आई, इसके लिए घट गया था। नवनीत गुप्ता जी, शाम में 60,000 गोल्ड आएगा? नवनीत जी, बहुत डिफिकल्ट है ये शाम तक का व्यू लेना, पर मुझे 200-250 रुपये तो गोल्ड में आज 10 मिनट में ऊपर नीचे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। सो आई एम नॉट बैंक, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। रोशनी जी, सिल्वर लेवल बता दीजिए सर। लेवल इज नॉट माय फोर्टे, लाइक आई सेड 68,100 68,000 के आसपास सिल्वर आ सकता है आज। सैंडी जैन जी, सर हाउ आर यू इन गोल्ड? आई एम गुड, आई एम बेटर, स्टिल आई एम नॉट फुल्ली फिट बट रिकवरिंग। गोल्ड व्यू मैंने बता दिया आपको, गोल्ड थोड़ा नीचे लग रहा है आज, सेलिंग करना चाहिए। सर जिंक कॉपर दोनों बाई है, क्या करें? होल्ड कीजिए कृष्णा जी, आज ऊपर आएगा। गुरप्रीत जी, हाउ आर यू सर? कॉपर को 755 से पोजिशनली सेल रख सकते हैं, एंड व्हाट इज योर स्टॉप लॉस इन टारगेट? गुरप्रीत जी, आज इवनिंग सेशन में एक बार थोड़ा बढ़ सकता है, 758 762। कॉपर पोजिशनली शॉर्ट ही है, ग्लोबल ग्रोथ कमज़ोर है, इसमें कॉपर नहीं बढ़ सकता है। और रशिया का अगर ये हो जाता है तो भले सेंटिमेंटली बाइंग आता है, पर सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाएगी, उसके कारण भी कॉपर नीचे आ जाएगा। नवनीत गुप्ता जी, मैं कॉपर में फंडामेंटली बेरिश ही हूँ। सैंडी जेन, 2 डे का। सो बेसिकली गोल्ड में मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताता हूँ, अभी समझो 1,000 रुपये आज बढ़ गया है, तो 1,000 रुपये बढ़ने के बाद जब नीचे आता है तब लेने का सोचिए, बेचने का मत सोचिए। ओवरऑल गोल्ड में लेके काम कीजिए, क्योंकि कोई और एक आध बैंक का प्रॉब्लम आ गया या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो आपको बचाएगा कौन गोल्ड के सिवा? सो गोल्ड में नीचे में 500-800 रुपये जो भी करेक्शन आता है उसमें लेके काम कीजिए, बेचने का ध्यान ही नहीं है। मैं गोल्ड में बेचने के लिए रिकमेंड करूँगा ही नहीं अभी जो हालात है। सेम सिल्वर में भी मेरा वही व्यू है। रमेश कुमार जी, नवनीत गुप्ता जी, गोल्ड सिल्वर व्यू। सर फ्राइडे गोल्ड बाई है। गिरीश जी, आप होल्ड कीजिए। फ्राइडे आपका क्रूड ज़्यादा गिरने का कारण था, खराबी और बढ़ गई थी यूरोप में, यूएस में, सब जगह पे। सो यहाँ से ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है एक बार आपको अगर स्टॉप लॉस आप लगाने में बिलीव करते हो, या स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो 50 to 40 50 का मन दिमाग में स्टॉप लॉस रखना। मुझे तो ऊपर लग रहा है क्रूड बढ़ जाएगा। अरहन जी, यहाँ से गोल्ड सिल्वर बाय कर सकते हैं? नहीं। ऋषभ गोयल जी, गिव सम व्यूज ऑन सीएमपी। ऋषभ जी, मैं आपको स्पेकुलेशन कराने के लिए बिलीव नहीं करता हूँ। ये करंट मार्केट प्राइस पे मैं आपको कॉल जब रहता है तब बोल देता हूँ कि ये प्राइस पे भी आप ले लो, पर आई एम नॉट इन अ फेवर टू आप लोग स्पेकुलेशन करें, या मैं आपको इंट्राडे टिप दे दूँ, या इंट्राडे में आप 5 रुपए का कॉल दे दूँ, ये सब मैं करने में बिलीव। मैं आपको एक डायरेक्शनल व्यू देता हूँ, सो आप लोग वो व्यू को फॉलो कीजिए।
आई एम नॉट अ इंट्राडे स्पेशलिस्ट, आई डोंट इंटेंड टू गिव इंट्राडे कॉल्स, मुझे इंट्राडे कॉल देना अच्छा भी नहीं लगता है। आपको मेरे व्यू पे वेल्थ बनानी है, आपको मेरे व्यू पे बड़ा प्रॉफिट करना है। सो मैं जो बोलता हूँ आपको एक व्यू दे देता हूँ, और मेरे व्यू के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। गिरीश जी ने पूछा, आप होल्ड कर सकते हैं। रविंद्र जी, गिरीश जी आप होल्ड कीजिए क्रूड, कोई टेंशन नहीं लग रहा है। रविंद्र जी, सब अब कहाँ सिल्वर में एंट्री लेना है, आएगा 68,000 67,500, फिर से हम तेजी करेंगे। अनूप सिन्हा जी, अनूप भाई वी कैन गो, नहीं गैस को छोड़ दीजिए अनूप जी, स्टिल डजंट लुक गुड। रोशनी जी, सिल्वर पी 4 लॉट बाय किए, यस आज आपको पैसा मिलेगा। ये जो आपने, जो मुझे नहीं मालूम आपने कौन सी स्ट्राइक ली है, पर आज इवनिंग सेशन में सिल्वर नीचे आ सकता है। पीयूष अग्रवाल जी, क्रूड बाई है, आ जाएगा भाव आपका पीयूष जी, नॉट टू वरी। सिल्वर, नवनीत गुप्ता जी, पहले का गोल्ड रखा है, प्रॉफिट करके नीचे में ले लो। अगर 1000 रुपया घटता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो होल्ड कीजिए, होल्ड करो, और आपको लगता है एक बार प्रॉफिट लेना है नीचे में आप बाय कर सकते हैं, देन यू कैन डू इट। बट ओवरऑल आज थोड़ा इवनिंग सेशन में कमजोर होगा ऐसा ध्यान है, और प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा होगा। मंदी गोल्ड में नहीं है, मैं जब भी आपको बोलता हूँ आप नीचे में ले लेना, उसका मतलब ऐसा है कि अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ठीक है, बाकी मुझे गोल्ड में कोई भी मंदी, सिल्वर में कोई भी मंदी नजर नहीं आ रही है। पहले का गोल्ड है, और मुकेश भाई गोल्ड बाई करें, नीचे के लेवल्स पे बाई कीजिए गोल्ड, ऊपर एग्रेसिवली चढ़ के लेने का कोई सेंस नहीं है। सो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में ध्यान दीजिए, आज इवनिंग सेशन में थोड़ा बहुत डिप आ सकता है बिकॉज ऑफ रशिया न्यूज़ सेकेंडरी। दूसरा, यूरोप थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा 1-2 दिन में, तो उसके कारण भी गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आएगा, पर ट्रेंड तेजी का ही है। क्रूड मैं आज बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, 50 to 50 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में आपको जगह है 5500 5600 तक जाने की। सो क्रूड में थोड़ा ध्यान अपसाइड का है। मेटल्स में आज इवनिंग सेशन में 3-4 रुपये कॉपर बढ़ सकता है, कोई फंडामेंटली तेजी नहीं है, और 58 to 62 में मैं फिर से किधर भी सेल कॉल ही दूंगा, रिकमेंड सेलिंग का करूँगा, पर एक छोटा मोटा स्पाइक के लिए आप बाय कर सकते हैं इवनिंग सेशन में। जिंक भी सेम 60 तक आ सकता है, वहाँ पे आप अगर फंसे हो तो एग्जिट ले सकते हैं, पर ओवरऑल माय व्यू इज दैट आज का जो पिक मुझे लग रहा है कि आज तो थोड़ा क्रूड इवनिंग सेशन में बढ़ने को लग रहा है। With that, I'll wrap up today's webinar. Wednesday will be crucial day. See you all on Wednesday, and let us discuss how to approach the Fed meeting. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.